Hello, my dear students. I am V.K. Shukla. We are going to learn adjoint and inverse of a matrix. It is the last topic of your chapter 4 in NCERT textbook, class 12. So first, what is the definition of adjoint of a matrix? See here, the adjoint of a square matrix capital A is denoted by adjoint capital A and defined as adjoint of A is equal to Aij n cross n is a matrix Aij transpose n cross n, where Aij is a cofactor of element Aij. So see here, that is how we can learn in another way. Suppose A, it is a square matrix A11, A12, A13. These are element A21, A22, A23 and A31, A32, A33. ये 3 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स है. तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा कि A11 कैपिटल A11 इट इज द कोफैक्टर ऑफ A11 एंड A12 इट इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 and capital A13 it is the cofactor of A13. So A21, A22, A23 similarly and A31, A32, A33 transpose. It transpose. What is the meaning of transpose? रो को कॉलम में आपको बदल देना है और कॉलम को रो में. It means it can also be written as A11, A12, A13 and A21, A22, A23 and A31, A32, A33. A32, all these are cofactors and defined as Aij is equal to minus 1 power I plus j Mij. So next, what is the property of adjoint of matrix? Now see here some property. If A is a square matrix of order n cross n, then first your property A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A n denoted n cross n, or it is the determinant of A, and adjoint of A is equal to determinant of A raised to n minus 1 provided determinant of A should not be equal to 0. And your third property is adjoint of A transpose is equal to adjoint of A transpose. Now we are going to learn, and it means prove with the example of these properties. Related to your first property, your question here, compute the adjoint of the square matrix 1, 4, 5, 3, 2, 6, 0, 1, 0. ये 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स है एंड वेरीफाई दैट A adjoint of A is equal to determinant of A I3 cross 3 is equal to adjoint of A into A. So see here, first we are going to compute what will be the value of determinant of A. So determinant of A is equal to 1, 4, 5, 3, 2, 6, 0, 1, 0. We calculate here as 1, it means 2, 6, 1, 0. हमने क्या किया, 1 को लिखने के बाद ये रो और कॉलम को हमने हाइड किया, 2, 6, 1, 0 आपका ये बना. नेक्स्ट -4 एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 हमने किया है. अब ये इसको हम हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे, तो 3, 6, 0, 0 आपका ये मिला. नेक्स्ट में +5 और आपका इसको आपने हाइड किया, ये हाइड किया, तो 3, 2 और 0, 1 आपको ये मिला. नाउ 1, 2, 0 से इंटू, तो 2 0 जा 0, -1 6 जा -6 हो गया. नेक्स्ट -4 it is 0, so 0 minus 0 and 5, 3 1 ja 3 minus 0. It means after calculate we get -6 plus 15 is equal to 9, the value of the determinant of A. And adjoint of A is equal to, as definitions, A11, A12, A13, these are cofactors of that elements, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ट्रांसपोज. सो यदि हम ट्रांसपोज चेंज करते हैं तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया. इट मींस एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23
and A31, A32, A33 for cofactor Aij is equal to -1 power I plus j Mij। ये आपका माइनर हो गया और ये आपका कोफैक्टर हो गया, और ये उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिनोट करते हैं। सो सी हियर A11 कोफैक्टर जो हो गया है आपका एलिमेंट A11 का हो गया, यानी 1 का हो गया। तो आपने कैसा कैलकुलेट किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग -1 पावर 1 प्लस 1, एंड आपने क्या किया, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, तो 2610 जो आपका ये मिला। अब कैलकुलेट करेंगे, 2 0 जा 0, -6 हो गया है आपका, तो 0 - 6 इट इज इक्वल टू -6। सेकेंड सिमिलरली A12 -1 रेज टू 1 प्लस 2 हो गया, तो A12 आपका 4 एलिमेंट जो हो गया इसको हाइड करेंगे, तो 3600 3600। So here second row is 0, it means 3 0 जा 0 0, the cofactor value of A12 is equal to 0। Similarly A13 का it means 5 एलिमेंट का यहाँ, तो आप ये देखेंगे इसको आपने हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 3201 जो हमने यहाँ पर लिखा। अब 3 1 जा 3 -0, so the value of A13 is equal to 3। ये आपके पहले रो के कोफैक्टर्स की वैल्यू आपको मिल गई -6 0 एंड 3। सिमिलरली A21 A22 और A23 आप कैलकुलेट करेंगे, तो A21 -1 रेज टू 2 + 1 हो गया, इसको आप हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, तो 4 5 और 1 6 आपको ये मिला, इट मींस 0 -5। सो हियर -1 रेज टू 3 इट मींस माइनस will be positive, it means the value of A21 is equal to 5। Similarly A22 -1 raised to 2 + 2, A22 के लिए आपको ये हाइड करना है आपको, तो 1500। so here 00, that the value of A22 is equal to 0। Similarly A23 is equal to -1 raised to 2 + 3, ये आपके 6 एलिमेंट का है, तो यहाँ पर 1 4 और 0 1, ये आपने कैलकुलेट किया, 1 1 जा 1 -0, इट मींस द कोफैक्टर फॉर थर्ड रो, इट मींस A31 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 3, आपने ये हाइड किया, ये हाइड किया, तो 4 5 और 2 6 जो हमने यहाँ पर लिखा। अब हम कैलकुलेट करेंगे, 4 6 जा 24 -10 इज इक्वल टू 14। ऐसे ही हमने इसको भी कैलकुलेट किया, A32 का -1 रेज टू 3 + 2, ये हाइड किया, ये हाइड किया, तो 1 5 और 3 6 आपने ये ले लिया और इसकी वैल्यू 9 आ गई। सिमिलरली A33 को आपने कैलकुलेट किया इसको हाइड करके, जिसकी वैल्यू -10 आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने देखा, ये आपने इनकी वैल्यू रखा A11 A12 A13 की, कैपिटल A21 A22 A23 की, A31 A32 A33 की। नाउ as your first part A into adjoint of A is equal to the value of A is also here and adjoint of A as the value here, so now we will be multiple here। तो देखो मल्टीपल कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ आपका पहला एलिमेंट मिलेगा, तो आपने 1 6 जा -6 किया, 4 0 जा 0 किया, 5 3 जा 15 आपने किया। सिमिलरली फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो आपका A12 का एलिमेंट मिला। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीपल किया, जैसे 1 14 जा 14 हुआ, 4 9 जा 36 हुआ, 5 10 जा 50 हो गया, तो ये आपके पहले रो के एलिमेंट मिले। सिमिलरली इसका आपने इससे मल्टीपल किया, इट मींस 3 6 जा 18 हो गया, 2 0 जा 0, 6 3 जा 18 ये आपको मिला, एंड 3 5 जा 15 मिला, 2 0 जा 0 मिल गया, 6 1 जा -6 हो गया, एंड 3 14 जा 42 मिल गया, 2 9 जा 18 मिल गया, 6 10 जा 60 मिल गया। अब आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये मिला है आपको, इसी प्रकार सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीपल किया तो A32 मिल गया, और इसका आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल किया, वी गेट इन योर फर्स्ट रो 9 0 0 0 9 0
0 0 9 9 आपने कॉमन लिया तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मिल गया। इट मींस ये 9 I 3 cross 3 the value of 9 as the determinant of A and I 3 3 it is your first equation. Similarly we can calculate adjoint of A into A is equal to determinant of A into I3. From first and second we verify that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I is equal to adjoint of A into A. Your second topic, inverse of a square matrix. अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज आप देखिए, यदि ए इनवर्स का इनवर्स कंप्लीट किया जाए तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपका हो गया, यदि प्रोडक्ट ऑफ ए बी का इनवर्स कैलकुलेट किया जाए तो ये बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। सिमिलरली ए बी सी यदि आपकी 3 मैट्रिक्स हैं, यदि ये डिफाइन हो तो देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। दीज आर मैट्रिक्स। एंड योर फिफ्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint A का inverse. Matrix A is equal to 2 3 5 minus 2. Then to prove A inverse is equal to 1 by 19 matrix A. So we calculate here A inverse. We know that A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So what is the value of determinant of A? It means determinant of A 2 3 5 2. We calculate here as 2 2 जा -4 -15, it means -19, it is not equal to 0. So we confirm here that A is invertible matrix. Now adjoint of A calculate करना है, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। It means A11 A12 ट्रांसपोज को हमने हटाया, अब A21 इस सेकंड वाले रो को हम सेकंड वाले कॉलम में हमने चेंज किया। एक्चुअल 2 के लिए ऐसा भी है कि इंटरचेंज and change the sign, but we calculate here with the formula that a11 minus 1 raised to 1 plus 1. आपने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया तो -2 आपका ये बना। आपने पाया इसकी वैल्यू -2। सिमिलरली a12 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हाइड किए, ये हाइड किए, ये आपका 5 a12 हो गया -1 raised to 1 plus 2 and 5, ये आपका -5 हो गया। सिमिलरली A21 में आपने ये हाइड किया, ये हाइड किया, ये इसका एलिमेंट है तो आपने इसका कोफैक्टर कैसे प्राप्त किया? -1 raised to 2 plus 1, और ये हाइड करने के बाद आपको 3 मिल गया तो ये -1 raised to -3, इट मींस -3 वैल्यू हो गया। सिमिलरली A22 का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया तो A22 का वैल्यू ये हो गया आपका 2। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्टेन किया, -2 -3 -5 एंड 2। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फार्मूला हुआ। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखा -19 एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने पुट किया। अब इन सारे एलिमेंट से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 19 एंड 2 3 5 -2, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है और हमने प्रूव किया A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 19 इनटू A। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू ये 3 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स है। आपको प्रूव करना है कि ये इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। A² - 4A - 5 I3, I3 मीनिंग हो गया 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 और आपको A इनवर्स फाइंड करना है। सो A² हमने A² ऑब्टेन किया, द मीनिंग ऑफ A² इज इक्वल टू A इनटू A। हमने A की वैल्यू रखा और इसके बाद हमने मल्टीपल करना है हमको, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीपल हमने किया। आफ्टर दिस आफ्टर कैलकुलेट A² इज इक्वल टू 9 8 8 8 9 8 8 8 9। नाउ LHS A² - 4A - 5 I3। हमने क्या किया, A² की वैल्यू पुट किया, 4 इंटू A की वैल्यू हमने पुट किया I3 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट 3 क्रॉस 3 का।
हमने ये वैल्यू पुट किया। अब -4 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीपल करके हमने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली -5 का सारे एलिमेंट में मल्टीपल करके इसको भी हमने प्लस में कैलकुलेट कर दिया। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो हमने ऑब्टेन किया आफ्टर कैलकुलेट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये इज इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। ये वेरीफाई हुआ इक्वेशन। अब ए इनवर्स ऑब्टेन करने के लिए सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग आवर क्वेश्चन a square minus 4a minus 5i3 is equal to 0, so a square minus 4a is equal to 5i3. After multiply both sides a inverse, we get a inverse into a minus 4a inverse a is equal to 5a inverse, and as we know that a inverse I is equal to a inverse and a inverse a is equal to I. After this ia minus 4i is equal to 5a inverse. Now ia is equal to a and minus 4i is equal to similarly at 4i and 5a. We are going to put the value of these. It means a minus 4i is equal to 5a inverse. We get the value of a is here and here minus 4 and the value of identity matrix is equal to 5a inverse. हमने क्या किया? अब -4 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीपल करके इसको प्लस में कन्वर्ट किया और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने अकॉर्डिंग टू देयर साइन कैलकुलेट किया। इज इक्वल टू 5 इनवर्स। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट a इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमने 5 है तो इधर 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड द वैल्यू ऑफ दीज आर एज -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 and it also can be write as -3/5। सारे एलिमेंट के साथ हमने 5 का डिवाइड कर दिया और यही आपका आंसर हुआ। थैंक्स।